students, as you know, we were doing the chapter electricity, and one part of electricity we have already covered. So before going to the second part of the electricity, let's have a quick recap of whatever we have done up to now. You know, in the last chapter we have studied about the charge. What are charges? Charges, you know, we have studied two types of charges, positive charges and negative charges. Positive charges, two positive charges repel each other, two same type of charges. That means चाहे आपके पास positive charges हो, negative charges हो, repel करेंगे. And we have studied positive और negative charge. अगर आपके पास दोनों charges unlike charges है, in that case they would attract each other. This we have studied. Then we have studied about the materials. Materials are of two types, conductors and insulators. Conductors, I have told you, are those materials through which electrons can flow. And insulator, on the other hand, we have studied there is no flow of electrons in the insulators. That's why these are known as insulators. Current cannot flow through the insulators and current can flow through the conductors. This we have studied. Then we have studied about the rate of flow of charge is known as electric current. I is equal to Q by T. This also we have studied. Q is charge, T is time. SI unit of charge is coulomb and SI unit of time is second. So the SI unit for time would become coulomb per second और इसी को आप लिख सकते हो एम्पियर. So SI unit for electric current is एम्पियर. वो मैंने आपको बता दिया था. Then हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि when current is said to be 1 ampere. current को हम कब 1 ampere बोल सकते हैं? When 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, then the current is said to be of 1 ampere. ये भी हमने कर लिया था. And based on this, we have done the numericals also. Numerical भी हमने इसके ऊपर based numericals भी देखे थे. Now we would study the next concept, and that is known as potential difference. Today we would understand about the electric potential and potential difference. स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे. सो इनको अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों टॉपिक्स क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है. और उसको समझने के लिए लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल. एंड एग्जांपल क्या लेंगे? आपने देखा है, अगर मैं दो टैंक ले लूं और उनमें जो वाटर का लेवल है वो इक्वल वाटर का लेवल ले लेती हूँ, तो क्या होगा कि पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्लो करेगा या नहीं करेगा. दिस वी हैव टू सी. सी, दिस इज वन टैंक ऑफ वाटर and here is a pipe is connected. There is another tank in which water is to be filled. Suppose दोनों में जो पानी का लेवल है वो यहां तक है. ये जो पोर्शन है, this is filled with water. इसमें this is level of water एंड यहाँ पे ये लेवल है वाटर का. दैट मीन्स इस पार्ट तक वाटर जो है वो इस टैंक में फिल है, इस टैंक में भी यहाँ तक फिल है, और इन दोनों टैंक्स को वी हैव कनेक्टेड थ्रू अ पाइप. हमने एक पाइप से क्या कर दिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है. तो अब स्टूडेंट्स, देखने वाली बात ये है कि क्या पानी इस टैंक से इस टैंक में फ्लो करेगा? तो पानी यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों ही जो टैंक्स हैं उनमें पानी का लेवल इक्वल है, तो पानी का फ्लो यहाँ पे नहीं होगा. लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि इस पानी के लेवल को इस टैंक में कम कर देते हैं, सपोज यहाँ तक पानी है, अब यहाँ पे पानी का लेवल इतना है और यहाँ पे आप देख रहे हो पानी का लेवल क्या है, कम है. तो यहाँ पे पानी का लेवल हो गया हायर और यहाँ पे पानी का लेवल हो गया लोअर. तो अब आपको पता है डेफिनेटली water will flow from higher level to the lower level. Water would flow from
हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि इन दोनों टैंक्स में जब अपने पानी का लेवल इक्वल रखा है तो ना इस टैंक से पानी इस टैंक में जाएगा ना इस टैंक से इस टैंक में जाएगा। लेकिन अगर आप एक टैंक में पानी का लेवल अगर राइज कर दे तो डेफिनेटली वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। उसी की तरह आई वॉन्ट टू रिलेट दिस सिचुएशन विद द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट है स्टूडेंट्स आई, करंट को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर आई। जो करंट है दैट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो भी कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अभी स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि ये पोटेंशियल क्या होता है, क्या हायर पोटेंशियल होता है, क्या लोअर पोटेंशियल होता है। तो जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करता है, ऊंचाई से हमेशा निचाई की तरफ जाता है, जहां पे लेवल राइज है और जहां पे लेवल कम है तो राइज से या हायर से हमेशा लोअर की तरफ जाएगा। वैसे ही करंट भी always flow from higher potential to the lower potential. So if I ask you a question कि electric current will flow from which potential to which potential, then you would say ma'am electric current flows from higher potential to the lower potential. कभी भी जो current है वो lower potential से higher potential की तरफ नहीं flow करेगा। One thing I hope आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट flows from higher potential to the lower potential। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो हमने एक चीज आज सीखी, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट वुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। तो आपको पता है अर्थ है, आप लोगों को मैंने 9th में सिखाया था कि अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस है या वो रीजन जिसमें अगर आप एक दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो, दूसरे एक आयरन को लेके आते हो, आयरन बार को लेके आते हो, तो वो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कैन आई सी कि मैग्नेट का एक फील्ड होता है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का भी एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इन इलेक्ट्रिसिटी वी वर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, तो चार्ज का भी अपना एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने अब तक पढ़ा कि अर्थ हैज a field that is known as gravitational field. Magnet has a field around it known as magnetic field. In the same way, अगर हम एक चार्ज की बात करें और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपके पास नेगेटिव भी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके पास प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ज। चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट मैं सिर्फ चार्ज की बात कर रही हूँ। तो चार्ज के चारों तरफ जो एरिया है उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी मटेरियल में से तो उस टाइम पे क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। और क्योंकि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है, इसीलिए जहां पे भी एक चार्ज होगा हम ये कहेंगे कि इसके चारों तरफ का जो फील्ड है, चार्ज के चारों तरफ का फील्ड है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इन द सेम वे द फील्ड अराउंड दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया है या इसके अराउंड जो रीजन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आते हो, सपोज इसमें आप एक दूसरा चार्ज ले आए Q, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब ये इसको या तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, क्योंकि
मान लो ये इस चार्ज की हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आप एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करके लेके आए हो, एक दूसरे चार्ज को ले आए हो। तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो चार्ज है ये इसके फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो द स्पेस अराउंड द चार्ज is known as electric field। ये हमने एक सेकेंड चीज सीखी कि चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड होता है, जो भी रीजन होता है, जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि सपोज आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है। इस चार्ज की पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, दैट मीन्स दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव चार्ज और दिस चार्ज कैन बी नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम बात सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये चार्ज है तो आपको पता है इस चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इसका, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये एक पॉइंट है A, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं सपोज यहां से। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट A इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। मतलब ये जो चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने एक पॉइंट ले लिया। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A एक पॉइंट ले लिया है। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक दूसरा चार्ज लाना चाहते हो, कहां से? इन्फिनिटी से। अब आपको इन्फिनिटी पता है, फ्रॉम द वेरी लार्ज डिस्टेंस। सपोज ये एक आप कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे हो, Q चार्ज को, ठीक है। ये Q चार्ज है, इसको आप इन्फिनिटी से लाना चाहते हो कहां पे? इस A पॉइंट पे, जो कि कहां पे प्रेजेंट है? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ, जब इस चार्ज को आप इस पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। सपोज आपने जब इसको यहां से ला रहे थे तो इसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ा, और कितना वर्क डन करना पड़ा? आपको W वर्क डन इसके ऊपर करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आते हो और वो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करता है, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको इस चार्ज के ऊपर करना पड़ा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ा, किसके ऊपर? इस चार्ज के ऊपर। किस लिए? इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, जो पॉइंट किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that point, कौन सा point? This point, to that point which is lying, जो lie कर रहा है, which is lying in the electric field of another charge। स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज हमने लिया है, इसके चारों तरफ जो स्पेस है उसको वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या कर रहे हो? किसी एक दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हो, इस पॉइंट पे। तो आपको पता है इस चार्ज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना भी आप वर्क डन करोगे इस चार्ज के ऊपर, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यू कैन राइट
amount of work done per unit charge is known as electric potential। और इसकी यूनिट क्या होगी, आपको पता है वर्क डन को आप मेजर करते हो जूल्स में और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। सो ये आपके पास हो जाएगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही स्टूडेंट्स आप बोलोगे क्या, वोल्ट, और जिसको आप डिनोट करते हो किससे, बाय द लेटर V। जैसे आपने करंट को मेजर किया था किसमें, एम्पियर में, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स, और वोल्ट्स को कैसे डिनोट करोगे, बाय द फर्स्ट लेटर V। So students, electric potential is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a point which is lying in the electric field of another charge। तो एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी वोल्ट। चाहे तो आप जूल पर कूलम बोल सकते हो, चाहे वोल्ट बोल दो, और इसको आप डिनोट करते हो किससे, V से। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम मेजर करते हैं बाय द डिवाइस एमीटर, ठीक है। अब आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने आज किया उसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।